Recording in progress. Hello. Hi. Hi. Hello, good evening. Hi. Hello. Sorry. Everybody, welcome to today's class, and let's see if somebody else is joining for 2 minutes, and then we can start with the programming lesson. In the meanwhile, if you have any questions about previous lessons or anything related to computer science, please feel free to ask. Okay, I missed the last class due to the login reasons. Can I have the recording? Hello? I can't Hello, hear. yes. Oh, yeah, sure. So I was muted. So for the last class, what I've tried to do is I've uploaded this video on my channel, and you could view that from there. So what I'll do is I'll post the link for the last lesson um, on the chat here, okay? And then you can check that out, okay? So that. Okay, thank you. And if you can also paste the link or maybe write the link of your channel so I can subscribe to it. Yeah, sure. So I'm going to do that now, and in a moment you can see that in your chat. So. Okay, thank you. So, Zishan, on your channel, only video is available or the slides also available on the channel? So they are particularly just right now the lessons, just like we do them. So in the video, as I use the slides, it is visible, but in general, the channel Okay. currently has not the slides there. Okay, Yeah, but I that's will enough. post the links on Yeah, the channel. Okay, so I will post the links. This is a good idea, really. Yeah, so I'll do that. Mhm. So I guess we're now joined by Misbah, Aksa, and Josefa, and let's see if somebody else is joining, and then we can eventually begin. And sorry, Sir Dishan, also the slides for the last session, if you can just share that. Yes, For sure. yes. So what I'll do is I'll just paste the link for the slides for the last lesson, and there you can check that out. So. Sometimes I'm not using slides. Sometimes I'm using W3 Schools. So this is like a website. So वहाँ पे उस वेबसाइट पे उन्होंने पूरा पाइथन का इंट्रोडक्शन या ट्यूटोरियल दिया होता है. So I, instead of creating slides, I want to use that website sometimes.
तो लास्ट लेक्चर में वी वेंट थ्रू दैट वेबसाइट. सो उस वेबसाइट का फायदा क्या है हमारे लिए कि आई वांट टू प्रमोट दिस प्रैक्टिस कि हम लोग जो है वो स्लाइड्स वगैरह की जगह पे डायरेक्टली इंटरनेट से कैसे कंज्यूम करें इंफॉर्मेशन, और उसमें फिर इट्स मच इजियर बिकॉज वहाँ पे W3 स्कूल्स का ये फायदा है कि दे हैव अ बटन कॉल्ड ट्राई नाउ. सो वो चीज़ मैं बहुत प्रमोट करना चाहता हूँ कि यू कैन जस्ट क्लिक ट्राई नाउ and it will take you to the page where you can run actual Python code. So अगर आप स्लाइड्स वगैरह में से देखते हैं तो आप थ्योरी तो कर लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल करने के लिए आपको फिर डिफरेंट जो सेटअप करना है पाईचार्म या अपने कंप्यूटर पे वो करना पड़ता है. तो उससे उससे बेहतर है कि W3 स्कूल्स पे वी कैन ट्राई एज वेल एज लर्न, क्योंकि वहाँ पे सारे कंसेप्ट जो हैं वो इन डेप्थ भी हैं. फिर ये होता है कि कुछ चीज़ें हम अपने लेसन में अगर कवर नहीं कर पाते तो W3 स्कूल्स ने फिर भी उतने मेन्यू में वो सब चीज़ें रखी होती हैं. सो दैट इज ऑल्सो समथिंग that encourages me to use W3 schools instead of these slides. तो last lecture में हमने W3 schools को use किया था. So let's see what we can do today. And all right, so I guess we are all here now for today, and I guess because I'm recording the lesson, so other people might be more prone to be using the recorded lessons. That's why maybe they're not here today. But in general, okay, let's begin. And मैंने ये भी पूछना था कि आप में से कौन से जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो एडवांस लेवल्स पे ऑलरेडी हैं, या आप लोग बिगिनर लेवल से शुरू कर रहे हैं एंड यू आर गेनिंग सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम दीज बिगिनर लेसन्स. बिकॉज मैं तो काफ़ी बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ, सो आई गेस यू गाइज काइंड ऑफ लर्निंग द बेसिक्स, या आप लोगों ने पहले प्रोग्रामिंग लाइफ में पढ़ी हुई है. सो दिस काइंड ऑफ हेल्प्स मी सेट द बेस ऑफ द लेसन एज वेल. No, for me, it's completely a career change and a very beginning of these lessons. Okay. So I didn't go through advanced so far. I just started. Yeah. All right. Okay. Maybe other people can share their experience too. Yeah. Mr. What about you? Like, are you starting your journey? Yes, for me, actually, I do have some theoretical background, but practically, ना मुझे अभी तक job में experience करना पड़ा है Python या कोई programming language, but actually somehow to pursue as a career path, मतलब on my portfolio अगर languages मुझे आती होंगी तो of course future में बिल्कुल help out करेंगे मुझे. That's why. So were you there, Huzefa, in the previous lessons as well? Yeah, is this your first lesson? No, मैं पहले दोनों session में था. All right. Okay. I was in the class. Okay. Hopefully. Super. That's so nice. Yeah. And what about you, Misbah? For me, it's okay. First lesson was really basic for me, but I missed the second one, so I don't know how it's going at the moment. Yeah. Okay. In the second one, we studied like string concatenation and string concepts, as well as indexing, and also like what are functions and methods. Okay. No, okay, then it's I already know that. Yeah. So functions and methods. Hopefully, this lesson would be more. Yeah. हम लोग आहिस्ता आहिस्ता एडवांस चीजों की तरफ जाएंगे. So आपने पहले कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की हुई है मिस्बा? मैंने बहुत एडवांस में नहीं की, लेकिन थोड़ा सबको टच किया. C++, MATLAB, Python. All right. Okay. लेकिन बहुत एडवांस में नहीं गई, बस मैं बेसिक्स up to for loop, while loop, और then you can kind of functions revise with us, like आपकी revision होती जाएगी of the basics. Although of course basics सबको आते हैं, लेकिन revision और फिर हम लोग साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता advanced उस पे भी move कर जाएंगे. जैसा Python की मुझे libraries का, modules का, इन सब का बहुत अच्छा आइडिया नहीं है. लाइब्रेरीज को कैसे इंटीग्रेट करना है, कैसे, जैसा लास्ट टाइम आपने फर्स्ट लेक्चर में कहा था लाइब्रेरीज होती है काइंड ऑफ कोड फ्रॉम समबडी एल्स. अच्छा. हाँ, उसको कैसे इंटीग्रेट करने को में, हाँ वो मुझे ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं उसको. It's nice to know. Yeah, sure, we can do that. ठीक है. So all right, let's begin today's lesson. ठीक है. I will share my screen so that you guys can see what I'm doing. Okay. And let's say we go to the W3 schools tutorial for Python. Okay. So all right. Okay. Let's see.
All right, so I guess today's topic, we can start with classes and objects, on what are classes and what are objects. I guess these concepts are similar to other programming languages, तो कुछ base तो सबके पास होगी ही थोड़ी बहुत इसकी, but I will try कि हम इसको in general शुरू से शुरू करें, ठीक है? So let's see कि what we can study today. आज का लेसन हमारा 40 minutes पे हम end कर देंगे because I have to go somewhere, but in general I guess कि we are gonna study a little bit more advanced topic than last of the very basics, okay? तो एक क्लास क्या होती है, ठीक है? तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे एक क्लास, ठीक है? क्लास किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? पाइथन में, ओके? So now the question arises, what is a class? ठीक है? तो पहले हमें थोड़ा सा थ्योरी समझ लेनी चाहिए कि what is a class, ठीक है? So a class is like a class of objects, okay? So but what does this mean? A class of objects का क्या मतलब है, ठीक है? So class of objects is like a category of things, ठीक है? In real world, ठीक हो गया? So कैटेगरी जब हम बनाते हैं किसी चीज की तो क्या कर रहे होते हैं? हम किसी चीज को क्लासिफाई कर रहे होते हैं, ठीक है? तो क्लास निकला है क्लासिफाई से, okay? So for for the explanation purpose, ठीक है? So हम इसको कह सकते हैं कि क्लासिफाई करने का क्या मतलब है कि दुनिया में कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो किसी ना किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कैट, गोट, ठीक है? और हम क्या लिख सकते हैं जी? रैबिट, ठीक है? तो और साथ में हम लिख देते हैं कॉफी, ठीक है? और साथ में हम लिख देते हैं पिना कोलाडा, ठीक है? तो अगर ये सारी हैं तो इनमें साफ हमें विजिबली नजर आ रहा है कि ये तीन चीजें एक कैटेगरी से हैं और ये दो एक कैटेगरी से हैं, ठीक है? तो हम इनको कहेंगे कि इनकी जो क्लास है वो एनिमल्स है, ठीक है? एनिमल्स है, और इनकी जो क्लास है वो ड्रिंक्स है, ठीक है? तो व्हाट वी हैव डन इज हमने क्लासिफाई कर दिया है, ठीक है? तो इट्स वेरी इजी। पाइथन में हम इसको फिर क्लास लिख देंगे यहाँ पे, तो ये क्लास बन जाएगी, ठीक है? हम यहाँ पे कॉलन लगा देंगे, ठीक है? तो हमारा ये जो सिंटेक्स है वो हमने W3 स्कूल्स पे भी देखा है कि क्लास स्पेस माई क्लास। हम यहाँ पे इसको जूम इन करके देख लेते हैं, ठीक है? हाउ टू क्रिएट अ क्लास, ठीक है? तो अगर माई क्लास के नाम से क्लास क्रिएट करनी है तो हम पहले क्लास का कीवर्ड यूज करते हैं, उसके बाद उस क्लास का नाम लिखते हैं और फिर एक डबल कॉलन, ठीक है? तो अब हम कहेंगे कि हाउ डज क्लास हेल्प अस? हम क्यों बनाते हैं क्लास, ठीक है? हम क्लास इसलिए बनाते हैं कि जैसे कुछ चीजें, कुछ एट्रीब्यूट्स, कुछ फीचर्स या कुछ जो काम है वो हर क्लास के से रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है? जैसे कि अगर हमारे पास एक ड्रिंक्स की क्लास है, ठीक है, और एक हमारे पास एनिमल्स की क्लास है, तो इन दिस केस हमारी जो ड्रिंक्स की क्लास है उसके कुछ अपने एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है? और जो एनिमल्स हैं उनके कुछ अपने एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है? जैसे कैट, डॉग, रैबिट है, ठीक है? दीज एनिमल्स कैन स्पीक, ठीक है? तो ये इनका एक फंक्शन है, ठीक है? दे हैव अ फंक्शन इन लाइफ, दे स्पीक, ठीक है? जैसे कैट म्याऊ करती है, ठीक है? इसी तरह वी हैव अ ड्रिंक, ठीक है? तो ड्रिंक्स की रेसिपी हो सकती है, ठीक है? तो इसका एक फंक्शन हो सकता है कुक का, ठीक है? या मेक अ ड्रिंक, ठीक है? तो अब हमने यहाँ पे देखा कि ये फंक्शंस इससे रिलेटेड हैं इस क्लास से, और वो फंक्शन उस क्लास से रिलेटेड हैं, ठीक है? तो हमारे पास अच्छा, इसी तरह इनके कुछ वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, जैसे एक एनिमल जो होता है उसका कलर भी होता है, ठीक है? तो अब ये इसका एक एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट कहते हैं किसी चीज की प्रॉपर्टी, किसी चीज की कोई कैरेक्टरिस्टिक को, ठीक है? तो इसका एट्रीब्यूट है इसका कलर, ठीक है? तो उस कलर को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं कि जी हमारी जो क्लास एनिमल्स है, ठीक है, उसके किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर हो सकता है, ठीक है? तो अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है? हमने अभी तक जो पढ़ा है उसको ऑर्गेनाइज करते हैं थोड़ा कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है? तो लेट्स सी, हमारे पास एक क्लास होती है, ठीक है? उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है? या उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक हो गया? और उस क्लास के कुछ फंक्शंस होते हैं। लास्ट टाइम हमने फंक्शंस पढ़े थे, मेथड्स, ठीक है? ये मेथड्स होते हैं। और तीसरी चीज क्या हो सकती है कि इवेंचुअली ये जो कंसेप्ट है ये रिप्रेजेंटेशन है किसी क्लासिफिकेशन, किसी चीज की, किसी एक टाइप ऑफ दुनिया के अंदर किसी एक टाइप ऑफ चीजों की, ठीक है? उन चीजों को हम एंटिटीज भी बोलते हैं, ठीक है? सो बेसिकली दिस क्लास, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? इट रिप्रेजेंट्स एन एंटिटी, ठीक है? अ रियल वर्ल्ड एंटिटी, ठीक है? तो अब ये जो हमारे पास रियल वर्ल्ड एंटिटी है, ठीक है, इसको एक क्लास रिप्रेजेंट करती है, लेकिन हमने फिर उस क्लास की
कुछ ऑब्जेक्ट्स, फिर हमें पढ़ना है कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो मतलब हमने यहाँ पे अब देख लिया कि क्लास क्या होती है। क्लास एक ऐसी चीज होती है जो काफी सारी असल जिंदगी की चीजों को एक जैसा इकट्ठा कर दिया जाए। जैसे बहुत सारे एनिमल्स हैं, ठीक है, तो अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल जैसे हमारे पास क्लास की है एनिमल्स, ठीक है, उसके अलावा क्या हो सकते हैं, कार्ड्स, ठीक है। अब ये हमने क्या किया कि एनिमल टाइप की सारी चीजों को इकट्ठा करके क्लास में रख दिया, और कार्स सारों को इकट्ठा कर, कार्स बहुत सारी हो सकती हैं, होंडा, करोला, सवेक, जीप, गाड़ी, ठीक है, उन सबको एक क्लास में रख दिया। तो क्लास बेसिकली एक कैटेगरी ऑफ चीजें हैं, कैटेगरी ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो हमने बेसिकली इस कैटेगरी में रख दिया है, ठीक है, चीजों को, ठीक है। अब हम ये कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं कि जी ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। दैट्स द नेक्स्ट थिंग ऑन आवर लिस्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, वो इस क्लास की किसी एक यानी कि कह लें कि इंस्टेंस को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। इंस्टेंस क्या होता है ये भी हम अभी समझते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट किसी क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है। जैसे हमारे पास एनिमल्स की जो क्लास थी, ठीक है, उसके अंदर हमने देखना है कि कई किस्म के एनिमल्स हो सकते हैं ना। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, वो एनिमल्स क्लास के अंदर कैट हो सकता है, ठीक है, डॉग हो सकता है, ठीक हो गया। तो ये इसके ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना। तो यानी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, एनिमल, और ऑब्जेक्ट खुद क्या है, कैट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, ठीक है। इंस्टेंस ऑफ अ क्लास भी कह सकते हैं, इंस्टेंस को हम मेंबर भी कह सकते हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ अ क्लास, ठीक है। तो यानी बेसिकली इट्स अ मेंबर ऑफ द क्लास, ठीक है। हमने क्लास बनाया, एक हमने कैटेगरी बनाई, और उस कैटेगरी के अंदर जो चीजें रैंक करती हैं, उस कैटेगरी में शामिल होती हैं, उनको हम इंस्टेंस या मेंबर कहते हैं। यानी कि ये इस क्लास का मेंबर है, ठीक है। अब हमारे ऊपर वाली एग्जांपल में बड़ा इजी हो गया देखना कि कैट जो है वो किस क्लास की मेंबर है, वो एनिमल क्लास की मेंबर है, ठीक है। तो अब हम बड़ा इजीली बोल सकते हैं ये कैट कौन सी क्लास की मेंबर है, ये एनिमल क्लास की मेंबर है, ठीक है। गोट कौन सी क्लास की मेंबर है, ये भी एनिमल क्लास की मेंबर है, ठीक है। रैबिट कौन सी क्लास का मेंबर है, वो भी एनिमल, ठीक है। तो हमने देखा, तो अब ये तीन चीजें क्या कहलाएंगी, जो मेंबर्स हैं इनको हम क्या बोलेंगे, ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये क्लास है, ठीक हो गया। तो अब आई होप के ऑब्जेक्ट और क्लास का कंसेप्ट सबको समझ में आ गया। जिसको क्लियर नहीं है प्लीज आई वुड टेक अ पॉज हियर एंड यू कैन आस्क एनीथिंग अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। अगर इसकी थ्योरी समझ नहीं आती तो फिर आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा, लिहाजा लेट्स सी के वी आर क्लियर अबाउट दीज कंसेप्ट्स अबाउट यू नो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। तो सबको क्लियर है? यस यस। ठीक हो गया, awesome। तो अब हमारे पास जब हमने पढ़ लिया कि ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस क्या होती है, हमने थ्योरी पढ़ ली, अब हम देखते हैं कि इसको पाइथन में कैसे हम बना सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, क्लास के अंदर हमने ये भी देख लिया कि क्लास के अंदर दो चीजें होती हैं, ठीक है। एक उसके वेरिएबल्स होते हैं यानी मेंबर, एक तो क्लास का मेंबर होता है उसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। और क्लास के अंदर उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड क्या क्या चीजें पड़ी हो सकती हैं, वेरिएबल्स, ठीक है, और मेथड्स, ठीक है। और वेरिएबल्स हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था कि जी जो है वेरिएबल्स कोई डेटा कंटेन करते हैं किसी चीज के बारे में, ठीक है। और मेथड्स जो हैं वो उससे रिलेटेड फंक्शंस होते हैं कि उस ऑब्जेक्ट के क्या क्या फंक्शंस हैं, जैसे जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि वो स्पीक कर सकता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि पाइथन में इस चीज को हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ कंसेप्ट अनक्लियर हैं तो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद क्लियर होते जाएंगे, जैसे जैसे वी वुड लुक एट डिफरेंट एग्जांपल्स, ठीक है। सो इन दिस केस हमारे पास एक क्लास है माई क्लास के नाम से, ठीक है। और उसकी प्रॉपर्टी यानी कि उसका एक वेरिएबल है जो कि उसका नाम है x, ठीक है। तो ये उसको कैसे बनाया है, क्लास का कीवर्ड रखा है, ये पाइथन का कीवर्ड है, ये क्लास, उसमें स्पेस, फिर उसका नाम, फिर दो कॉलम्स, और फिर हमने वेरिएबल उसका एक बनाया है उस क्लास से रिलेटेड, तो x इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये थोड़ा अनक्लियर है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सिंटेक्स बताया जा रहा है, लेट्स सी कि हम कुछ बेहतर बना सकते हैं इसे, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, तो ये हमें सिखा रहा है कि कैसे हम एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं इस क्लास का पाइथन में, ठीक है। तो कैसे बना सकते हैं, p1 ये एक ऑब्जेक्ट का नाम है, ठीक है, इज इक्वल टू माई क्लास, यानी कि ये क्लास का नाम है, ठीक है। और फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन सर्कुलर और ब्रैकेट क्लोज सर्कुलर, ठीक है। और फिर हम उसके बाद प्रिंट कर सकते हैं उसके अंदर जो x की वैल्यू, ठीक है।
तो अभी तो कोई वैल्यू नहीं रखवाई हुई। इस केस में हमने यहाँ पे क्लास तो बनाई लेकिन x की वैल्यू सेट तो नहीं की, तो इसलिए जब हम प्रिंट करेंगे तो वी वुड हैव सम इश्यूज यहाँ पे, ठीक है। तो अच्छा, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इनिट फंक्शन क्या होता है। ठीक हो गया। तो अब हम इसको ना स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे ट्राई योरसेल्फ पे जाके देखते हैं, ठीक है। ओके, ठीक हो गया। तो हम इस कोड को समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कर रहा है ये कोड, ठीक है। ठीक हो गया, या लेट्स सी। तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम लोगों ने एक क्लास बनाई है, ठीक है, उसका नाम है पर्सन, ठीक है। अच्छा, अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम उस क्लास के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ना उनको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। नेम, ठीक है, क्लास के अंदर नेम होता है, नेम इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे उसने क्या किया है कि उसने एक इनिट फंक्शन बनाया, ये एक मेथड बनाया, ठीक है। तो अब लेट्स सी कि हम इसको शुरू से थोड़ा सा लेके चलते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। हम ये इनिट फंक्शन अभी फिलहाल मिटा देते हैं, ठीक है, इसको हम आगे जाके लिखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि एक क्लास है पर्सन, ठीक है, और उसके उसके अंदर हमने कहा कि नाम भी रखो और उसके अंदर उसकी एज भी रखो, ठीक है। और ये P1 इज इक्वल टू पर्सन का क्या मतलब है कि हमने एक पर्सन बनाया और वो पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब इस लाइन को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम है P1, ठीक है, इज इक्वल टू क्लास का नाम, ठीक है। और हम ये दो वैल्यूज इस क्लास को दे के भेज रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मली शुरू में हमें ये वैल्यूज अभी नहीं पढ़नी, ठीक है। अभी हमें बस सिर्फ यहाँ तक देखना है कि ये क्लास बनती इस तरह से है, ठीक है ना, कि क्लास पर्सन कर दिया, ठीक है, और उसका कोई वेरिएबल हो सकता है नाम, ठीक है, उसका कोई और वेरिएबल हो सकता है जैसे कि एज, ठीक है। तो लेकिन हमने इस केस में क्या किया है कि इन नेम और एज को सेट करवाने के लिए हमने एक मेथड यानी कि एक फंक्शन डिफाइन किया है, ठीक है। और उस मेथड को कहते हैं कंस्ट्रक्टर मेथड, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कंस्ट्रक्टर, ठीक है, मेथड। अब कंस्ट्रक्टर मेथड क्या होता है? कंस्ट्रक्टर मेथड ये होता है कि जब आप एक क्लास को क्रिएट करते हैं ना तो उसको आप कुछ वैल्यूज दे के भेज सकते हैं। जैसे हमने कहा कि P1 बनाओ एक पर्सन, लेकिन वो पर्सन तो है लेकिन उसके अंदर कुछ वैल्यूज हमने दे के भेजी हैं कि भाई उस पर्सन का नाम जॉन है और उसकी एज 36 है, ठीक है। तो एक कंस्ट्रक्टर मेथड या फंक्शन का क्या काम होता है जिंदगी में कि वो एक क्लास को बनते हुए ये वैल्यूज बता देता है कि जो हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उस क्लास की टाइप का, यानी एक पर्सन अब हम डिफाइन कर रहे हैं ना, इंस्टेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको ये जो हमने काम किया है इसको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं इंस्टेंशिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे ये थ्योरी में आपको ये अल्फाज मालूम होने चाहिए कि इंस्टेंसिएशन क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है। इंस्टेंसिएशन किसे कहते हैं? किसी भी क्लास के एक ऑब्जेक्ट बनाने को इंस्टेंसिएशन कहते हैं, ठीक है। इसकी इजी एग्जांपल हो सकती है कि जैसे क्रिएटिंग अ कैट ऑफ क्लास एनिमल, ठीक है। तो हमने क्या किया? क्रिएट किया एक ऑब्जेक्ट, उसको वो कैट थी और उसकी क्लास एनिमल थी, ठीक है। इस केस में हम क्या कर रहे हैं? क्रिएटिंग अ पर्सन, ठीक है, जॉन ऑफ क्लास पर्सन, ठीक है। तो पाइथन में अब हम इसको किस तरह से कर सकते हैं? लेट्स सी। यहाँ पे हमारे पास P1 रखा है, इसको हम यूं भी कर सकते हैं पर्सन अंडरस्कोर जॉन, ठीक है। अब ये हमारे वेरिएबल का नाम है। वेरिएबल्स हमने पढ़े थे फर्स्ट लेसन में कि क्या होते हैं, ठीक है। इस वेरिएबल के अंदर हम कोई डेटा स्टोर कर सकते हैं। हमने उसके अंदर क्या स्टोर कराया? हमने एक ऑब्जेक्ट स्टोर कराया। उस ऑब्जेक्ट की टाइप क्या है? पर्सन। पर्सन उसकी टाइप भी है, उसको क्लास भी बोलते हैं। वो किस क्लास का मेंबर है, किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? वो पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल है इसमें पर्सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जिसका नाम जॉन है और उसकी एज 36 है। अब ये नाम और एज को स्टोर करवाने के लिए कोड में हमें लिखना पड़ेगा एक कंस्ट्रक्टर मेथड। तो पाइथन में कंस्ट्रक्टर लिखने के लिए उन्होंने एक इनिशियलाइज का मेथड रखा हुआ है। मैंने अभी बताया ना कि हम यहाँ पे चीजों को इनिशियलाइज करते हैं ना, ठीक है, यानी क्लास को इनिशियलाइज भी तो करेंगे ना। जब भी क्लास बनेगी तो उस टाइम पे इनिशियलाइज करना कहते हैं उसको शुरू करना, उसको शुरू में बनाना, उसको किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करना। जैसे हम एक
बिल्डिंग बनाते हैं, तो उसी तरह जब हम एक क्लास बना रहे हैं, एक उस क्लास का नाम है पर्सन, तो एक पर्सन बनाते हुए हम कुछ तो बताएंगे ना कि पर्सन की एज क्या होनी चाहिए, नाम क्या होना चाहिए। तो इनिशियलाइज का जो मेथड होता है ना, उसको हम इनिट करके लिखते हैं, ठीक है, उसको हम लिखते हैं इनिट, ठीक है। तो उसका हम सिंटेक्स देखते हैं कि वो कैसे होता है, ठीक है। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि पाइथन में जो आपके डेफ किसे कहते हैं, डेफ कहते हैं डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन, ऑफ अ मेथड, ठीक है। मेथड क्या होता है वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, वो आप वीडियो जरूर देख लें उसकी, ताकि आपको समझ आ जाए कि मेथड क्या होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम एक डिफाइन कर रहे हैं डिफिनेशन ऑफ अ फंक्शन जिसका नाम है इनिट, इनिट मतलब इनिशियलाइज, ठीक है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा कमेंट लिख देते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन टू इनिट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑफ क्लास टाइप पर्सन, ठीक है। तो ये समझने की जरूरत है कि ये क्या कर रहा है, ये एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। यहाँ हमने देखा ये कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर मेथड कहते हैं इस मेथड को, ठीक है। तो ये एक मेथड है, जो कंस्ट्रक्टर मेथड है वो क्या करता है, वो इनिट करता है, इनिट मतलब इनिशियलाइज करता है, ठीक है। क्या इनिशियलाइज करता है, इस पर्सन टाइप की क्लास के एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है। और इसमें फिर ये उसका सिंटेक्स है पाइथन में, कैसे आप इनिशियलाइज करते हैं एक क्लास के टाइप के ऑब्जेक्ट को, ठीक है। कैसे करते हैं, शुरू में उसको सेल्फ दे देते हैं, ये बस एक स्टैंडर्ड यानी कि है। इसको कैसे आपको, ये आप कहेंगे ये कैसे मुझे पता कि ये टाइप करना है, ये सिंपल है, इसको आप जाके सिंपली लिखें पाइथन कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर आप पाइथन का लिखेंगे तो आपको बहुत सारी एग्जांपल्स मिल जाएंगी कि कंस्ट्रक्टर कैसे लिखा जाता है। जैसे आप देखें यहाँ पे किसी ने भी लिखा हुआ है डेफ इनिट सेल्फ, ठीक है। तो ये बेसिकली बॉडी ऑफ द कंस्ट्रक्टर इधर लिख देते हैं, ठीक है ना। तो हमने देखा कि कंस्ट्रक्टर कैसे लिखते हैं, डेफ अंडरस्कोर इनिट और उसमें सेल्फ लिख के भेजते हैं, ठीक है। सेल्फ क्या होता है, ठीक है। अब हम ये पढ़ते हैं कि सेल्फ क्या होता है। सेल्फ जो है ना, सेल्फ कहते हैं खुद ही, खुद, जैसे वो कहते हैं ना खुद मैं, ठीक है। तो जैसे अब पर्सन है, अब पर्सन का नाम है जिशान, ठीक है। तो मैं अपने आप को कैसे रेफर करूंगा, मैं कहूंगा सेल्फ, यानी कि मैं, जैसे वो बैंक का चेक काटते हैं ना, तो उस पर साइन करते हुए लिखते हैं, वो पूछते हैं कि कौन बंदा है जो पैसे ले रहा है, तो कहते हैं हम सेल्फ, भाई जिसका अकाउंट है वही पैसे निकलवा रहा है, तो उसको सेल्फ बोलते हैं, ठीक है। सेल्फ मतलब वही वही ऑब्जेक्ट जिसकी बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेल्फ की बात कर रहे हैं, तो को इनिशियलाइज कर रहे हैं ना, सेल्फ को इनिशियलाइज कर रहे हैं। जैसे भाई एक पर्सन है, ठीक है, पर्सन का नाम है जॉन, तो अब इस जॉन बंदे को जब इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो पहले तो उसके इनिशियलाइजेशन में के मेथड को चाहिए सेल्फ, यानी अपना आप चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं उसका नाम और उसकी एज को हम सेट करा दें, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसको सेट हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, हम यहाँ पे उसका कह देते हैं कि जी सेल्फ डॉट ए नेम और सेल्फ डॉट एज, ठीक है। तो यहाँ पे हम, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि हमने पढ़ा था पिछले लेसन्स में, क्योंकि पाइथन में इंडेंटेशन जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कि आप देखें जहाँ पे क्लास का तो शुरू में शुरू हुआ था, कोई स्पेस नहीं है क्लास से पहले, लेकिन जहाँ पे डेफ शुरू हुआ तो ये स्पेस है, ठीक है। अब डेफ के जो अंडर चीजें होंगी ना, उनमें और भी स्पेस होगी, ठीक है। तो इस तरह से कर करके ये स्पेसेस डिफाइन करती हैं कि हायरार्की ऑफ कोडिंग कैसे चल रही है। एक क्लास है, क्लास एक बड़ी चीज है, ठीक है, उसके अंदर एक छोटी चीज है, एक मेथड जो कि उसका कंस्ट्रक्टर मेथड है जो इनिशियलाइज करता है। फिर उसके अंदर हमने कहा कि जी सेल्फ का नाम, यानी उस ऑब्जेक्ट का नाम रख दो जो बाहर से आने वाला ऑब्जेक्ट। तो हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था कि किसी भी मेथड के ये जो दो सर्कुलर ब्रैकेट्स होते हैं ना, इनके बीच में जो भी चीज होती है वो उसके पैरामीटर्स होते हैं। तो हमने ये लास्ट लेसन में पढ़ा था कि पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पैरामीटर आया एक नाम का बाहर से, ठीक है। बाहर से मतलब जिसने कॉल किया ये मेथड, ठीक है। तो ये मेथड खुद ब खुद कॉल हो जाता है। कंस्ट्रक्टर मेथड में और आम मेथड्स में क्या फर्क है कि कंस्ट्रक्टर जो है वो खुद ब खुद कॉल हो जाता है, ठीक है ना। और ये जो दूसरे मेथड्स हैं वो हमें खुद कॉल करने पड़ते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम जो मेथड्स पढ़े थे, उनके पैरामीटर्स के साथ वी कॉल देम, ठीक है। लेकिन जो आज हमने मेथड पढ़ा है कंस्ट्रक्टर, दैट्स अ मेथड व्हिच इज ऑटो कॉल्ड। ऑटो मतलब कि वो खुद ब खुद कॉल हो जाता है। कब कॉल हो जाता है, व्हेन इज इट कॉल्ड, व्हेन इज द कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, व्हेन वी इंस्टेंशिएट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। व्हेन इज कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, व्हेन वी इंस्टेंशिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप क्लास,
ठीक है, हम कोई क्लास बनाते हैं, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाने लगते हैं तो खुद ब खुद कंस्ट्रक्टर चल पड़ता है। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा अप्लाई करके देखते हैं इन चीज़ों को कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, तो अब हमने बेसिकली शुरू से पढ़ते हैं कि क्लास बनाई, उसको पर्सन नाम दिया उस क्लास का। ठीक है, फिर हमने उसका एक कंस्ट्रक्टर मेथड बनाया जो उसको इनिशियलाइज करेगा, उसके ऑब्जेक्ट्स को, उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करने का मतलब है शुरू करना, बनाना, कंस्ट्रक्ट करना। कंस्ट्रक्शन हो रही है, बन रही है कोई चीज, जैसे इमारत बनती है ईंटों से। ठीक है, उसमें कौन कौन सी दो ईंटें हैं, एक नाम है, एक उसकी उम्र है, एज। ठीक है, वो हमने बाहर से पास करनी है बनाते हुए। ठीक है, क्योंकि जैसे हम मेथड्स को कॉल करते हैं वैसे ही जो है ना हम लोग कॉल करते हैं क्लास के कंस्ट्रक्टर मेथड को, लेकिन ये खुद ब खुद कॉल हो जाता है जब हम क्लास को इनिशियलाइज करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, तो हमने कहा हम थोड़ा सा नीटनेस के लिए ना ये जो कमेंट्स हैं इनको रिमूव कर देते हैं ताकि कोड जो है वो थोड़ा क्लियर हो जाए। ये काफी ज्यादा ग्रीन ब्लू। ठीक है, सो लेट्स सी। ठीक है, हमने यहाँ पे जो है वो self.age क्या यूं देखते हैं हम। ठीक है, एक क्लास, उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर मेथड, कंस्ट्रक्टर मेथड के अंदर हमने क्या किया है, अपने आप का नाम रख दो जो बाहर से आने वाला पैरामीटर है। ठीक है, तो इसको हम पैरामीटर अंडरस्कोर नेम यूं भी कह सकते हैं ना, पैरम नेम। ठीक है, ये भी नाम रख सकते हैं इसका हम, जैसे कि पैरम नेम। ठीक है, और इसको हम कहते हैं पैरम मतलब पैरामीटर। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा साइड पे कर देता हूँ ताकि हमारा ये। ठीक है, तो पैरम एज। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये जो बाहर से नाम आया पैरामीटर, इसको अपने आप के नाम पे असाइन कर दो, और जो बाहर से पैरामीटर आएगा एज, इसको अपनी एज पे असाइन कर दो। ठीक है, तो सेल्फ डॉट एज मतलब कि इस क्लास की जो एज है, इस क्लास के ऑब्जेक्ट की एज उस पे असाइन कर दें। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसको हम कॉल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे हम एक बनाते हैं पर्सन अंडरस्कोर जॉन इज इक्वल टू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसको पर्सन, ठीक है, उसका अब हमने क्या क्या पैरामीटर्स देने हैं। अब आप कहेंगे यहाँ पे सेल्फ देना पड़ेगा, नहीं सेल्फ नहीं देना पड़ता। सेल्फ यहाँ पे खुद ब खुद पहले से हो गया है, उसको पता होता है कि सेल्फ। देखिए ना, हमने 3 पैरामीटर्स देने हैं ना, एक इसमें इसको एक सेल्फ, एक पैरामीटर। सेल्फ इज इम्प्लाइड। ठीक है, इट इज ऑटोमेटिकली सेंट। सेल्फ क्योंकि अपने आप को ही कहते हैं, तो जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ये अपने आप को खुद ब खुद भेज देगा इस सेल्फ पैरामीटर में। ठीक है, तो उससे अगला पैरामीटर हमारे पास क्या है, पैरामीटर नेम। नेम का पैरामीटर जो है उसका नाम हम पर्सन का क्या रखना चाहते हैं, जॉन। ठीक है, और उसकी एज क्या रखना चाहते हैं हम, हमने कहा जी 30 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो ये हम जो है रखा। ठीक है, पर्सन जॉन, उसकी नेम। ठीक है, इसी तरह हम इसको अब चला के देखते हैं कि वो क्या कहता है। नॉर्मली शायद वो इंडेंटेशन के कुछ एरर्स थ्रो करेगा, बिकॉज हम इस वक्त ब्राउजर के अंदर हैं तो ये एक लिमिटेड इन्वायरमेंट है, तो बट लेट्स सी। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है कि जी पैरम एज जो है वो inconsistent use of tabs and spaces in indentation। हाँ जी बिल्कुल, इंडेंटेशन का ये है बेसिकली कि हमें चूंकि ब्राउजर बेस्ड इन्वायरमेंट यूज कर रहे हैं ना, तो इसमें वो कह रहा है कि जी आपने यूजेज जो है वो इनकंसिस्टेंट किया है। ठीक है, तो लेट्स सी के हम थोड़ा सा इसकी स्पेसिंग जो है ना वो यहाँ से देखते हैं कि कितनी स्पेसेस यूज कर रहा है। 2 स्पेसेस। ठीक है, और 2 स्पेसेस, तो लेट्स सी हम यहाँ पे। ये फिक्स नहीं है, ये स्पेसेस फिक्स नहीं होती जैसा 4 स्पेसेस। नहीं, ये असल में ना ये स्पेसेस जो है ना ये आपके एडिटर पे भी डिपेंड करता है। जैसे इस वक्त हम कौन से एडिटर पे बैठे हुए हैं, हम बैठे हुए हैं W3 स्कूल्स के एडिटर पे, वेबसाइट के अंदर बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो असल में जब आप इसको पाईचार्म में लेके जाते हैं ना, जैसे ये पाईचार्म का प्रोजेक्ट खुला हुआ है मेरे पास, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, आप सिंपली टैब दबा देते हैं। टैब का बटन लगा होता है कीबोर्ड पे कैप्स लॉक के बटन के ऊपर, तो आप वो प्रेस कर देते हैं तो वो खुद ब खुद स्पेसेस डाल देता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने अभी टैब प्रेस करता हूँ यहाँ पे टैब। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ये 1 2 3 4 स्पेसेस को टैब बोलते हैं। ठीक है ना, तो हम ये देख भी सकते हैं कि
कि टैब का क्या होता है, ठीक है, इंटरनेट पे गूगल पे देख सकते हैं, ठीक है। तो टैब यहाँ पे मैंने भी प्रेस किया तो उसने एरर इसलिए दे दिया है कि बेसिकली वो शायद 2 स्पेसेस पे ये वाला एडिटर चल रहा है W3 स्कूल्स का, ठीक है। इन दी एंड हमने बस ये करना होता है कि जो पहली आउटर लाइन है वो उसकी जो इनर लाइन है ना वो उससे आगे के इंडेंट पे होनी चाहिए, मतलब, और उससे इनर उससे आगे के इंडेंट पे होनी चाहिए, यानी कि इवेंचुअली ये जो है ना इसको हम देख भी लेते हैं, ठीक है, गूगल पे के जी पाइथन इंडेंट साइज, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि फ्रॉम PEP8 Python's official style guide use 4 spaces per indentation level, ठीक है। तो 4 स्पेसेस अगर हम यूज करें, या फिर वो कह रहा है हिट द टैब बटन वंस, ठीक है। तो हमें अब पता लग गया कि ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं कि ये चलता है, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि जी P1 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, नेम P1 इज नॉट। क्या किया हमने यहाँ कहा है कि P1 की नेम प्रिंट कर दो, तो P1 तो डिफाइन ही नहीं किया हमने, उसका नाम रखा है पर्सन जॉन। तो पर्सन जॉन का नाम प्रिंट करो, ठीक है, पर्सन जॉन की एज प्रिंट करो, ठीक है, पर्सन। तो अब इसको हम रन करते हैं, लेट्स सी के हाउ इट लुक्स लाइक, ठीक है। हाँ जी, ये प्रिंट हो गया जॉन 30, ठीक है। अब हम ना इसको थोड़ा सा अपनी एग्जाम्पल पे लेके जाते हैं कि जहाँ पे हमने कहा था कि जी ठीक है। अच्छा, एक हम ये भी कर सकते हैं कि अब इस पर्सन के कुछ, अभी तक हमने जो मेथड डिफाइन किया है वो तो कंस्ट्रक्टर मेथड है, वो हम इस कोड को समझने की कोशिश करते हैं कि पहली लाइन में हमने कहा क्लास बनाओ पर्सन टाइप की, फिर दूसरी लाइन में हमने कहा एक मेथड बनाओ कंस्ट्रक्टर जो कि खुद ब खुद चल पड़ा करे जब भी हम पर्सन टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाए। ऑब्जेक्ट क्या होता है वो मैंने इस वीडियो के शुरू में आपको बताया, ठीक है। अच्छा, अब हम पर्सन टाइप का ऑब्जेक्ट बनाने लगे, उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने 2 चीजें देके भेजी, नाम और एज, और वो खुद ब खुद असाइन हो जाती, यहाँ खुद ब खुद नहीं, मतलब हमने कोड में असाइन कर दिया नाम को कौन सा पैरामीटर, जो पैरामीटर नाम है, नेम है, ठीक है, और फिर एज को पैरामीटर एज असाइन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये पहला फंक्शन हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शन लिखा है। ये थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है कंस्ट्रक्टर, लेकिन ये आई होप के आई हैव बीन एबल टू एक्सप्लेन। पूछ लीजिएगा अगर समझ नहीं आता। अगली लाइन में क्या हो रहा है, यहाँ पे हम वाकई एक ऑब्जेक्ट बनाने शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा कनेक्ट करके देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ हम कह रहे हैं क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू पर्सन, ठीक है, और उसका नाम और एज दे के भेज रहे हैं, ठीक है। हम ये क्रिएट कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, पर्सन जॉन, ठीक है। और फिर हमने कहा कि ये नया पर्सन टाइप का क्लास का एक बंदा बनाओ, ठीक है, ये क्लास का नाम है यहाँ पे, ठीक है, और उसका नाम और एज दे के भेजा। अब नाम और एज जब भेजा तो हमने चूंकि कंस्ट्रक्टर लगाया हुआ था, अच्छा कई दफा ऐसे भी हो सकता था कि नाम और एज हम ना दे के भेजें, ऐसे भी बन जाता पर्सन, ठीक है। लेकिन हमने इसके कंस्ट्रक्टर में लिख दिया है कि इसकी ये शर्त है, इस क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाने की ये शराइत में शामिल है कि एक नाम भेजें और एक एज हमें भेजें, उसके अलावा पर्सन बन नहीं सकता, ठीक है। तो ये चीज है। अब लेट्स सी के हम ये कर सकते हैं कि इस पर्सन के ऊपर कुछ मेथड्स भी हो सकते हैं ना। अब ये पर्सन क्या कर सकता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जी ये पर्सन जो है वो वॉक कर सकता है, ठीक है। तो हम उसे कहते हैं वॉक, ठीक है। ये हम एक मेथड लिख रहे हैं। अब ये मेथड उस क्लास के अंडर है, ठीक है ना, क्योंकि ये इंडेंट से पता लग रहा है कि ये मेथड इस क्लास को बिलोंग करता है, ठीक है, पर्सन को। अगर ये यहाँ बाहर होता, ये इंडेंट ना होता, तो फिर ये वॉक इसको बिलोंग नहीं कर रहा होता पर्सन को, फिर ये एक अलग से मेथड होता आपकी फाइल के अंदर, कोडिंग की फाइल में, ठीक है। तो अभी ये पर्सन से बिलोंग करता है, तो ये कैसे पता लगता है कि ये इंडेंट से पता लगता है, ठीक है। तो अब ये वॉक करता है पर्सन, ठीक है, और वॉक में फिर हम कहते हैं कि वॉक में क्या करो, प्रिंट कर दो आई एम वॉकिंग, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जी ऑब्जेक्ट के मेथड्स कैसे बनते हैं, ठीक है। तो उसने कहा है कि एक सेल्फ का पैरामीटर देना होता है, एक फंक्शन का नाम देना होता है, एक डिफाइन, और उसके फिर अंदर कुछ भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स से हम यहाँ पे सेल्फ इसको दे दो, ठीक है। तो हमारा ये एक फंक्शन बन गया, एक मेथड बन गया वॉक का, ठीक है। और उसमें वो जो पर्सन है वो वॉक कर रहा है, ठीक है। तो आई एम वॉकिंग की जगह, अच्छा तो ये होगा कि चले हम इसको थोड़ा रन करके देखते हैं, ठीक है। अभी हम रन करेंगे तो लिखा आना चाहिए आई एम वॉकिंग, लेट्स सी, नहीं लिखा आया। क्यों नहीं लिखा आया, क्योंकि हमने फंक्शन तो बना दिया लेकिन उसको कॉल ही नहीं किया, ठीक है। मेथड को कॉल
भी तो करना होता है ना, और मेथड को किसी ऑब्जेक्ट पे कॉल करना होता है। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास है, वो ये है पर्सन जॉन। तो अब हम कहेंगे पर्सन जॉन को क्या करो, वॉक करा, ठीक है। तो पर्सन जॉन डॉट वॉक, ठीक है। तो लेट्स रन दिस एंड सी क्या होता है। ओह या, नाउ वी कैन सी कि इस लाइन का क्या असर हुआ है कि उसने पर्सन जॉन के वॉक का मेथड कॉल करा दिया, ठीक है। इसको हम ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉल कर रहे हैं, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट की कुछ एट्रीब्यूट्स, कुछ प्रॉपर्टीज भी तो अवेलेबल है ना, जो हमने अभी पेंट में पढ़ा था कि हर ऑब्जेक्ट की कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ उनके एट्रीब्यूट्स, जैसे कि उसका कलर होता है, ठीक है। तो इसी तरह हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो हमारे पास पर्सन के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं अवेलेबल, नाम, उसका एज, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हमारा जो नाम है सेल्फ डॉट नेम प्लस आई एम वॉकिंग की जगह कर देते हैं इज वॉकिंग नाउ, ठीक है। तो अब हम रन